Thank you so much, ma'am, for that academic presentation. And HRD would like to hand over a token of appreciation. For that, I would request Professor Amarjeev Lochan to please come on the stage and hand over the memento to Ma'am Sharma. Thank you so much, Prabhuji. Next in line, I would like to request Mr. Rajesh Madholkarji, who himself is a human rights activist and has come all the way from Cambodia, has been working in this field since a very long time. Sir. Good morning, everybody. Just I'd like to do a small correction that I've been working by visiting Indonesia, not Cambodia. And what we are doing there is, where the Hindus are in minority, we want to touch every corner of that country, connecting every Hindu to each other. That was the basic concept for which we have been working for last 10 to 12 years and having good results. Now, since the topic today is about Dalits in Pakistan, so the first and foremost question that arises is, who is responsible for the plight of Dalits? Is it the Islamic country, or first of all our own setup? So introspection is called for on this issue, that the first step to take them into main fold should come from the Hindu community. And therefore, we have lots of efforts in Bharat also, other places also, to see that this caste discrimination is totally annihilated. Many efforts have been done for that purposes and at various levels, but still we find that even in our own country, the politics of caste is taking place. So this is not issue of Pakistani government first, it comes second. If at all we have the entire Hindu community of Pakistan together without distinction of caste, supporting each other, I think 50% of the problems of the community would be solved. So I would suggest a way, what can we do? First of all, to sensitize the Hindu community there, the so-called upper caste, which we do not accept as upper caste, but for the sake of calling them upper caste, we have to refer them as upper caste because they identify with that. And therefore, a first and foremost initiative from the NGOs working in that field, from the spiritual leaders working in that field, should be that all these persons should be tied together by a common bond. The moment we achieve that, we work further. When we were facing this problem, on that we had taken one seminar in Surat that was about human rights of minorities in Islamic countries. We find that in the constitution there is a clear-cut averment in the Pakistan constitution that Islam will be the state religion. Secondly, they say you will have human rights, we have regard to human rights, but all those human rights are subject to Islamic laws. Then where is the relevancy of that human rights? The moment you say Islamic law is superior. In my travel to Bangladesh as well as Malaysia, I found the same pattern there. In Malaysia, when there was uprising, that people went to streets for the first time, I met their leader who had been jailed for quite some time, who was an eminent barrister there. He said that, I asked him a question, what is the problem faced with the common Muslim people in Malaysia? He said, we don't have any problem, they are good people. That in the time of your crisis, how many human rights NGOs of Muslims, your Muslim friends, came to support you? Then he reflected for a moment and then said, no one. If nobody is coming to support you in the time of crisis, they are mere spectators, then what is the use of those friendships? So we have to understand the clear design behind
a country's politics, and specifically the Pakistan, Bangladesh and other such Muslim countries, where they have clearly over and over again with the majority stated that we don't recognize anybody else but Islamic nation, Islamic country, Islam all over the world. So the moment you are dealing with such a mindset, then all your reasons, logic, everything fails because they have not accepted. We may analyze the constitutional provisions, we may analyze so many things, we may come out with so many theories. All theories, everything that remains in the book, practical at the ground level, everything falls to ground, absolutely. And therefore, we have to build up a support system for the Hindus living as minorities in Islamic countries, making it a broader than just a Pakistan, because things will be the same. And for that purpose, how we can help them, we have to devise that mechanism. All their plights are recorded, all their sufferings are recorded, everything is there in the book. You search the internet, you get all the things, all the data. The question remains that we have amongst us the people who are actually doing the groundwork and helping them. And so, what my proposal is that we must have from various different areas of the metropolitan areas some good eminent people coming together and forming a national group for support of minorities living in Islamic countries. With formation of this group, these people interact and then they will have different functions. Some people would be studying the problem, some will be studying the solution aspect, some will be advocating at various levels, and even some would be visiting the countries if possible. So, with this type of setup, we can at least reach to those people. The documentation which is made, that can be used to see that their sufferings are relieved now. And for that purpose, I request Mr. Gognaji also to see that we have such a cell dedicated specifically for the study of Hindus in Islamic countries living as minorities, and on that we can have a working group which will interact with all the organizations, which will be coordinated together, and that work will be spread all over the country, and ultimate beneficiaries will be the Pakistan Hindus. Thank you very much. Thank you so much, Rajesh ji. I would request our chair to honor Rajesh ji once, Sushil ji. हमारे बीच में श्री हनुमान प्रसाद जी हैं, जिन्होंने अपने जीवन का काफी समय सिंध में व्यतीत किया है। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो मंच पे आए और अपने अनुभव साझा करें। हनुमान जी। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी मैंने डॉक्यूमेंट्स भी देखा और दलित के बारे में भी हो रहा था कि पाकिस्तान में सिर्फ दलित ही नहीं, राजपूत भी हैं और वहाँ से जितने भी बनिया भी हैं और भी बहुत सी कौमें हैं। तो जैसे आप बराड़ी के साइड जाते हो तो वहाँ पे जो जमींदार उनके साथ जुल्म कर रहे हैं वो आप देख नहीं सकते, क्योंकि वो लोग हमें ये कहते हैं कि आपका पाकिस्तान है ही नहीं, आप पाकिस्तानी है ही नहीं। हमने पूछा क्यों, तो वो हमें कहते हैं कि जब पाकिस्तान बना था तो केवल एक समुदाय ने, यानी कि एक कौम ने बोला था कि हमें पाकिस्तान चाहिए, सिर्फ मुस्लिम कौम ने बोला था कि हमें पाकिस्तान चाहिए, और इसी बुनियाद पे पाकिस्तान बना था, वरना बंटवारे की कोई जरूरत ही नहीं थी। बंटवारा क्यों होता? आज भी तो पाकिस्तान से ज्यादा जो मुसलमान हैं वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो बंटवारा करने की जरूरत नहीं थी। तो इसी धरना से हमें वो हिंदुस्तानी कह के हम पे जुल्म करते हैं, और जुल्म इस हद तक करते हैं कि उनको 24 घंटा ये ख्याल रहता है कि इनको कैसे कन्वर्ट करें, कैसे इनको हिंदू से मुसलमान बनाएं, पैसे देके, लालच देके, डरा के, धमका के, जबरदस्ती, गन पॉइंट पे, यानी कि वो अपनी बहुत सी कोशिशें करते हैं कि इनको कन्वर्ट करें।
कैसे भी करके। जब मैंने, वो हमें काफिर कहते हैं वहाँ बहुत से, मैं सब नहीं बोलता कि पूरे मुसलमान जो उनका दिल नहीं है, बहुत से अच्छे भी हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये लफ्ज़ क्या है, काफिर लफ्ज़ क्या है, कि जो दीन को ना माने, जो इस्लाम को ना माने और जो कुरान पे अपना ईमान ना लाए, वो काफिर होता है। और उसकी परिभाषा भी और उसकी सजा भी लिखी गई है कि ऐसा कोई बंदा होता है, उसको कोई मुसलमान मारे, काटे, संपत्ति लूटे और उनकी माँ बहन के साथ जो भी बुरा सलूक करता है तो वो गाजी कहलाता है। मरने के बाद 7 हुरें उनको मिलती है। मैंने बोला ये पता नहीं, हमने तो नहीं सुना है कि ये हमारे जो किताब उसमें लिखा हुआ है। तो वहां पे जैसे कोई भी, जैसे यूसुफ योहाना थे, आपको पता होगा, बड़े क्रिकेटर थे, वो क्रिश्चियन थे, उनको जोर जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। यूसुफ योहाना, अभी बोलते हैं मोहम्मद यूसुफ योहाना, कन्वर्ट कर दिया उनको। तो हम ये कहते हैं कि वहां पे आज भी कम से कम 18 जेलें हैं जिसमें हिंदू अभी भी बंधवा मजदूरी करते हैं। जब उनसे काम लिया जाता है तो खेतों में ले जाते हैं, पाँव में जंजीरें बांध के, और उनके जंजीरों के साथ 20 किलो 1 मन का जो पत्थर होता है वो बांध देते हैं, और जंजीर लंबी होती है जहां तक वो काम करता है। शाम को आता है, सिर्फ सूखी रोटी प्याज के साथ उसको मिलती है। उनको बच्चों के साथ भी यही होता है। पहले तो आपने सुना होगा एक जेल थी, उस पर हमला हुआ, फिर उनको छुड़ाया गया, लेकिन अभी भी 17-18 जेलें ऐसी हैं हमारे साथ। जैसे हमारा कोई त्यौहार आ जाए, हम कोई हवन करें, तो उसी वक्त एक वक्त मेरे से वाक़ा हुआ कि हम हवन कर रहे हैं, अब मैं बोल नहीं सकता, गौ माता का सर काट के उस हवन में फेंका गया। आप बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपकी माता का सर काट के अगर उस हवन में फेंका जाए तो आप क्या कह सकते हो। हमारे सामने गन पॉइंट पे, अगर आपके सामने कोई गन पॉइंट पे आपकी मां बहन के साथ कोई, और ये कहेंगे आप कन्वर्ट हो जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे, आप मुसलमान बन जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। हमें फख्र है, इतना टॉर्चर होने के बाद भी, इतनी मुसीबत उठाने के बाद भी हमने अपना धर्म नहीं छोड़ा है, और मर जाएंगे धर्म नहीं छोड़ेंगे। आप अपना जो भी ये चालू रखें, लेकिन भगवान देख रहा है। अगर हमें आप मार रहे हो, कन्विट कर रहे हो, तो आप भी देख लो, आपस में लड़ रहे हो, मर रहे हो। ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू है वो आपस में ही मर रहे, आप दुनिया में देख रहे हो। उनको सिखाया यही जाता है कि मारो, काटो और जबरन किसी की प्रॉपर्टी में कब्जा करो। और जबरन, मैं क्या बताऊं आपको, जैसे मेरी एक दास्तान है, मैं चौथी के बाद क्लास में वहां पे 5वीं में जब गया तो मुझे हनुमान प्रसाद वहां नाम पुकारा गया। तो बच्चे हंसने लगे, शायद टीवी में कार्टून वगैरह देखते होंगे, तो मुझे बंदर बंदर कह के पुकारा गया वहां पे। जब मैं बाहर निकलता था तो पत्थर मेरे पे मारे, ये वो। मैंने मेरे बाप बाप से बोला मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। क्या कि यही है कि आप अपने टीचर से बोलें। जब मैं टीचर के पास गया, मैंने बोला मैम ये हमें बहुत तंग करते हैं, आप समझाओ कि ये मुसीबतें तो आपको झेलनी पड़ेंगी। अगर इस मुसीबत से आपको छुटकारा लेना है तो आप अपना धर्म परिवर्तन कर लो। मेरे दिमाग काम नहीं किया कि अगर मुसीबत से छुटकारा करो, धर्म परिवर्तन कर लो, तो क्या सब मुसीबतियों का जो छुटकारा है वो धर्म परिवर्तन करने से है? क्या जो मुसलमान बन गया उनके साथ कुछ नहीं हो रहा? उनको भी तो वो कर रहे हैं, शिया सुन्नी को मार रहे हैं, आपस में भी तो वो मर रहे हैं। लेकिन मरने के लिए क्यों हमें वहां छोड़ा गया? पाकिस्तान क्यों बनाया गया? अगर पाकिस्तान बनाया गया तो हमारा क्या कसूर था कि हमने वहां हमें रखा गया? वहां पे हजारों के एकड़ में जब हमारी हिंदुओं की जमीनें थी उनको हड़प कर दी गई।
जो 47 से पहले हमारे मजदूर थे, हमारे खेतों में काम करते थे, वो जमींदार बन गए। अब हम उस खेतों में काम करते हैं, वहां के मजदूर हैं और हमारे साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही मैं ह्यूमन राइट्स को सबको भी ये बताना चाहूँ, सबको पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। अब वहां छोड़े, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, सबको पता है। लेकिन चुप क्यों है? कौन सा दबाव है? अगर क्या बात है? मैं तो सोचता हूं कि मुसलमान जितने भी कंट्री हैं उनके पास पैसे बहुत हैं, तेल के कुएं हैं, शायद डरते हैं उनसे, क्यों नहीं उठाते ये मसला। और जो वहां के हिंदू हैं और जो वहां से प्लान होके यहाँ पे आए, 4 साल से पड़े हैं उसी झोपड़ी झुग्गी में। अगर मैं कहना चाहता हूं, इस जी ना होते, गुप्ता जी ना होते, 5 साल से जो हमने देखभाल किया, इस गवर्नमेंट ने भी हमें क्या दिया? 4 साल से हम पड़े, हमें क्या? उसी झोपड़े में पड़े हैं। रात को बारिश हुई है, हम अपने बच्चों के साथ, ऊपर से बारिश हो रही है, नीचे अपने बच्चों, इतनी ठंड में हम अपने एक सिर्फ रजाई में 6 बच्चों के साथ हम पड़े रहे। अगर हिंदू होना गुनाह है तो ये गुनाह करने के लिए हम तैयार है। हमने वहां भी जुल्म और सतम सहे थे और यहां भी जब तक जिंदा है हम अपने धर्म पे रहेंगे और अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप आजमाओ। लेकिन ये मसला आप किसी के भी सामने रखें, वो ये कह देगा कि शायद होता होगा। उनको एहतियात मालूम नहीं है कि मोहम्मद गौरी ने हमारे साथ क्या किया। जितने भी हमारे देश में आके हमें मार के हमारे मंदिरों के साथ क्या किया। वहां पे पाकिस्तान में अगर एक बाबरा मस्जिद यहाँ पे जो थी नहीं कभी, उसको अगर तोड़ा गया तो वहां 7,000 जो मंदिर थे, छोटे से बड़े, सब तोड़े गए। लेकिन एक न्यूज नहीं दिखाई यहाँ पे कि अगर यहाँ पे बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, अब तक इश्यू है, अभी तक उस पर राजनीति हो रही है। क्या वहां पे इतने सारे मंदिर तोड़े गए, किसी ने आवाज उठाई? क्या वहां की मीडिया ने आवाज उठाई? क्या उस मंदिरों के बारे में किसी ने सोचा? आज भी सिर्फ एक कलेक्टर का मंदिर जो थोड़े बहुत और माता का मंदिर वो बचा हुआ है, बाकी तो सब खत्म कर दिए गए। तो मेरे हाथ जोड़ के आप लोगों से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं उनके बारे में कुछ सोचो। मीटिंगें मैंने बहुत अटेंड की हैं, बहुत मीडिया में भी गया, बहुत रोया, बहुत पिलदाया, लेकिन सुन के बाहर जाते हैं तो कहते हैं कहानी थी, अच्छी कहानी थी। बस मुझे हाथ जोड़ के विनती है। और हमारे हिंदुस्तान में जो वहां से आए हुए वो भी बहुत दुखी है। दुखी ये नहीं है, सब भाई हैं अपने। दुखी ये है कि वो झोंपड़े में पड़े हैं बेचारे, उनकी बुनियादी सहूलतें नहीं है। कोशिश भाई कर रहे हैं हमारे, जैसे इस जी है, महावीर गुप्ता जी हैं, और भी संगठन है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितना वो हो सके हमारे लिए कर रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन अभी भी कुछ करने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि अदनान समी पैसे कमाने आया था, उनको नागरिकता मिल गई। हम लोग धर्म बचाने आए, हमें क्या मिलेगा? क्या वो पैसे वाला है? क्या वो गायक कलाकार है? हम इंसान नहीं है? अदनान समी इंसान है, उसे नागरिकता दे देगी। हमें क्यों 5 साल हो गए, 10-10 साल से, 20-20 साल से, यहां तक कि हमें वीजा के फॉर्म हमने दिए हुए, वो भी हमें इशू करके नहीं देते। हमें कहीं प्रॉब्लम में हम फंस जाएंगे, आप कहां से आए हो। हमने अप्लाई दी हुई है, हम घुसपैठिए नहीं है। आप ये नहीं सोचो जैसे बांग्लादेश से घुसपैठिए घुस जाते, हम घुसपैठिए नहीं है। हम भारत माता के कानून के तहत रह रहे हैं और हम इज्जत करना चाहते थे, वहां भी इज्जत करते थे, यहां भी इज्जत करते हैं। हम वीजा और पासपोर्ट से रह रहे हैं, तो कम से कम हमारे बारे में सोचा जाए कि इतना समी पैसे कमाने आए थे, हम धर्म बचाने आए। जय हिंद। बहुत धन्यवाद हनुमान जी, अपना हृदय विदारक अनुभव हम लोगों से साझा करने के लिए। Now I would like to request Shri Hindu Singh Sudha ji, who is a minority right activist and has come from Jodhpur, to come and share his views, sir.
सम्मानित मंच और उपस्थित साथियों, आपने क्या हालात हैं माइनॉरिटी के पाकिस्तान के एक जो वहाँ जुल्म सितम सहन करके आप बीती आपने सुनी। दरअसल इसके और अगर हम लोग थोड़ा सा गहराई में जाएंगे तो हम लोग पाएंगे कि क्या बात है कि ये सब आज हम लोग इस जगह मिलकर के और इस चर्चा कर रहे हैं। और खास करके जब मैं अपना अनुभव साझा करने की मुझे कहा गया है तो मैं 2 दशक से I am working particularly on the issue of the Hindus particularly, and of course, and I have studied the situation of the minority in Pakistan that's migrating due to religious persecution and discrimination in their country of origin. So वहाँ उस मामले के अंदर जो हालात हैं, you would wonder there is not a single legislation which can give a sense of security to the minority. Like we have 20-point Prime Minister's agenda for the minority. We have separate is body that's a minority commission. There are so many other institutions which take care of the not only minority rights but the integrated development of the minority. So उसी अगर हम नजरिए से पाकिस्तान में हम देखेंगे तो एक भी ऐसा कोई इदारा नहीं है, ऐसी कोई तंजीम नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी है उनके हालात पर काम कर रही हो, चाहे वो सरकार के अंदर भी कोई जगह नहीं है। उस हालात के अंदर जब कहीं जुल्म होता है तो उस जुल्म की सिर्फ जो है वो एक अगर कहीं मेरे ख्याल से खबर भी जैसे मेरे साथी कह रहे थे कि वो भी नहीं बनती है, अगर बन भी गई तो वो एक दिन खबर बन करके दूसरे दिन वो एक बासी खबर बन जाती है या एक अरसे बाद में लोग उसको भूल भी जाते हैं। क्योंकि वहां पर जब आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप क्या मतलब पहली लाइन जब आपने ये लिख दी कि इट विल बी नोन एज ए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, and in that if you don't dare to write a single line for your minority people that you will protect them, and there is no mechanism for those people to stay in the safe zone, तो उनके पास में कोई चारा नहीं है कि वो लोग कहाँ आएंगे। ये भी एक सवाल है कि भारत आएंगे। तो भारत में जब आते हैं तो मैं दोनों की आपको तुलनात्मक बात करने की कोशिश करूंगा। हालांकि जो आपका टॉपिक है वो है कि वहाँ दलित सिचुएशन क्या है। मेरे ख्याल से अभी एक मेरे पूर्व वक्ता जो यहाँ बता रही थी कि मंडल, मेरे ख्याल से जोगेंद्रनाथ मंडल जो कि खुद मुस्लिम लीग के तो खैर थे ही वो, लेकिन मैंने जब उनके बारे में और भी जब जानने की कोशिश की, सो दैट वाज ए काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी from the Dalit leaders at that time, that how they can, engage with both major political parties. That was the Congress at that time, which was again fighting for the freedom movement, and Muslim League. Of course, they were, saying the same thing like to free India, but then Jinnah took this stand to having their own separate nation for the identity of the Muslims, because they had a whatever, and that is known now. It is accepted that country was divided under two-nation theory, and two-nation theory is very clear that because this nation will be dominated by Hindus, so Muslims will not be safe, and they want to keep their separate identity, so they need Pakistan, and Pakistan was separated on 14th August 1947. So उस हालात के अंदर जब आपने दो नजरिए पर मुल्क का बंटवारा किया, और जोगेंद्रनाथ मंडल का मैं बात जो कर रहा था कि वो वहां पर जाते हैं एंड ही इज मेड लॉ मिनिस्टर, कैन यू इमेजिन? आई थिंक देयर इज कोई उसके पीछे बात रह ही नहीं जाती है कि आफ्टर रिमेनिंग 3 years एज ए सेंट्रल full-fledged minister of the law particularly, and he was not able
to even stay as a law minister, and he had to resign, and in his long resignation letter, that is, itself is self-explanatory that what is the situation of the Hindus. He has not even used the word Dalit, and that because, of course, I mean, when we come on the situation of the Dalits, again we have to see the caste system within India. So that is again, it's not a separate society. It is only 70 years society in terms of the Pakistan. Because whatever kind of shortcomings and caste system which is prevailing in India, that same system is prevailing in Pakistan. So, but the kind of discrimination they are going through, of course, Dalits are going through the two kind of, like as a Hindu, they are discriminated on the religious basis, and as a Dalit, of course, they are discriminated on the caste basis, with both upper class Hindus as well as Muslims. But then here, the establishment itself is involved, and they are very much interested that now though the last census was in the 1998, and that the whole, this population, particularly the Hindu, they say 1.6, but it is around 1.5. So that way, practically, Dalits and tribals, particularly the Bhils, major community, if you count them, they are around, practically I'm telling you, they are not less than 70%, it's a very big number that way. So they wanted, now they should be separated from the Hindus, so they'll be in the, having a rift within themselves, rather than saying that Muslims are doing kind of the atrocities and discriminating as a Hindu. So anyway, this kind of the politics is going on there. But still we have to admit and I think work on the issue of the caste, particularly on the untouchability, which is prevailing over there with the Dalits. So again, I'm coming on that even Jagannath Mandal, that he realized and wrote a long letter, and in that he writes that now it is not possible for the Hindus to stay in such a system which only started 3 years back. Now imagine how 67 years are past now, and what situation is. It is worsened like anything in Pakistan. बेहद खराब हो चुकी है वहाँ पर हालात, और हालात का अब ये आलम है कि मैं दोनों की बात करता हूँ, क्योंकि मैंने दोनों के साथ में काम करता हूँ। हालांकि ये अलग बात है कि जो वहाँ से विस्थापित होकर के आ रहे हैं, उनके साथ में वो उनका सबसे बड़ा अगर कोई केंद्र आज की तारीख में तो वो जोधपुर बन चुका है, और राजस्थान वैसे भी 5 लाख की आबादी है वहाँ पर विस्थापितों की, आपको ताज्जुब होगा, और जो कि जिसका जिक्र नहीं होता है। और इसलिए कि मैं तो गिना सकता हूँ आपको कि आप 65 में 10,000 लोग आए, and then it was a major exodus when in 71 when Indian troops captured 50 kilometers inside Pakistan, 90,000 people migrated from there, 90,000. And then when Babri Masjid, this episode started in India, then there was retaliation which my friend already has shared with you. So in that retaliation, even at that time the situation was totally changed because whole border was fenced. And in Rajasthan particularly, 1,008 kilometers which we share with Pakistan, the border. So because it was porous before, so people were simply, crossing the border, coming on this side and were settling down. But now situation is not the same because of the fencing. Now people are coming under valid documents. उनके पास में पाकिस्तान का पासपोर्ट है, और Indian embassy in Islamabad, they give them the visa to come, and visa is given of the 2 types, that's the visitor visa and the pilgrim visa. अब दोनों को लेकर के जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ भी जुल्मों की दास्तान जो है वो कम नहीं है। जैसे कि मैं पाकिस्तान की अगर मैं बात कर रहा था कि वहाँ पर अगर कोई एक सिस्टम नहीं है, कोई उसको प्रोटेक्शन के लिए कहीं कोई एक कानून नहीं है, और वहाँ उस पूरी सोसाइटी के अंदर एक कहीं कोई स्पेस नहीं है उनके लिए, तो वहाँ पर उनको लगता है कि हम लोग आज अभी वो पीढ़ी बैठी है, क्योंकि 70 साल हुए हैं पाकिस्तान बने हुए, क्योंकि आज हमारे सब परिवारों के अंदर 70 साल से बुजुर्ग लोग बैठे हैं, तो उनके वो तो एक तरीके से अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, वो तो भारत में पैदा हुए थे, तो वो भारत के तरफ ही जाएंगे अगर मान लीजिए उनकी
जो संतानें हैं, उनकी जो औलाद है, अगर वो अपना, अगर किसी को मुल्क, अगर जब आपको वहां तस्लीम ही नहीं किया जा रहा है, जैसा कि अभी कहा जा रहा था और ऐसा माना जाता है कि वहां आपके लिए अभी तक, मैं तो कई बार जब मेरे को वहां वो टीवी पर या बाकी लोग कहीं इवन लाइव भी लेते हैं, मैं तो उनसे पूछता हूँ, क्योंकि वहां पर एक मेरे लिए अच्छी बात ये रहती है पूछते हुए कि वहाँ जो भी लेजिस्लेशन बनाने वाले चुने हुए लोग भी बैठे रहते हैं, वहां पर जो एक बहुत बड़ा जो स्ट्रॉन्ग, अगर वहाँ पावर सेंटर्स का सिनेरियो देखेंगे तो जो वहाँ के मजहबी रहनुमा हैं वो भी बैठे रहते हैं, जो कि कोई मौलाना होते हैं, कोई बड़े खुद को इस्लामिक एक आइडियोलॉग के तौर पर वहाँ पर उनको बैठाया जाता है। तो उनसे हम एक सवाल पूछते हैं और मेरे अभी इस सवाल का कभी जवाब नहीं मिला है। वो ये है कि यहाँ पर अगर कोई भी माइनॉरिटी के साथ में किसी ने अगर कोई जुल्म किया, बहुत सारे लोग, इवन चुने हुए लोग जेलों में गए हैं, बहुत सारे लोगों को सजाएं हुई है, लेकिन वहां पर कितने लोग हैं? इतना आइडियल मुल्क है क्या कि मतलब वो इतना वाकई पाक मुल्क है कि जहां पर कभी माइनॉरिटी के साथ में कोई जुल्म ही नहीं हुआ? माइनॉरिटी के वजीर जो थे उनको मार दिया गया, वहां के जो गवर्नर थे उनको माइनॉरिटी राइट पर बोलने के लिए, खाली के वो उनके फेवर में बोलने के लिए मार दिया गया। और बाकी माइनॉरिटी के साथ में किस किस ढंग के जुल्म होते हैं, तो उनके अभी तक आपने किस आदमी को कोई सजा दी हो? कितने लोग हैं, कितने लोगों के खिलाफ में ट्रायल चला, और कितने लोग जो हैं जिनको आपने सजा दी है इस माइनॉरिटी जो राइट्स के जो वायोलेशन हुआ है या किसी भी ढंग का कोई जुल्म हुआ है? अभी तक पाकिस्तान बनने के बाद में एक भी आदमी को किसी भी ऐसे जुल्म की जो माइनॉरिटी के साथ में हुआ है कोई सजा नहीं हुई। आप अंदाज लगा सकते हैं उस मुल्क के अंदर लोग कैसे रहेंगे। तो लोग माइग्रेट करके आने को मजबूर होते हैं, और फिर एक जुल्मों की पूरी एक दास्तान है। जैसे अब पैसे वाला है, मैं क्यों बहुत संक्षेप में इसलिए भी कहना चाहूंगा कि शायद और बात पता नहीं मेरे पास वक्त कितना है और लोग बोलेंगे शायद, कि अब जो पैसे वाला है उसका तो आप रैंसम के लिए अबडक्शन हो जाता है। जो भी, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सिंध चैप्टर की बात कर रहा हूं। सिंध चैप्टर के अंदर ये कहा गया है, बाकायदा ये उनका एक रिपोर्ट है कि 40 एवरेज जो है वो भी, जिसमें भी माइनॉरिटी की लड़कियां, खास करके जो माइनर, उनमें उनकी तादाद ज्यादा है, उनको अबडक्ट किया जाता है, किडनैप किया जाता है, किडनैप करके उनके साथ में रेप होता है, जबरन शादी होती है, जबरन उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। अब अगर ऐसे हालात के अंदर, मतलब पैसे वाला भी नहीं बख्शा जा रहा है वहां पर, और न गरीब को बख्शा जा रहा है, और बॉन्डेड लेबर की, खासकर जब हम दलित कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, वो तो दास्तान ही अलग है, क्योंकि वहां बाकायदा एक एक्ट जरूर बना, लेकिन वो कोई माइनॉरिटी के लिए, दलित के लिए नहीं बना है, लेकिन उसका भी क्या हाल हुआ? आप एक उसमें भी बना दीजिए, चलिए आपके उसमें दलित वर्ड नहीं है, माइनॉरिटी वर्ड नहीं है, लेकिन आपने कितने लोगों को सजा दी है? क्योंकि माइनॉरिटी जो बॉन्डेड लेबर एक्ट जो आपने 92 में बनाया पाकिस्तान ने, उसमें कितने लोगों को सजा हुई कि वो लोग बॉन्डेड लेबर रख रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि ये तमाम, कहीं अगर कोई छोटा कुछ बना भी है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर वहां पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो इन सब हालात के अंदर, और मन्नू भील का किस्सा तो पूरी दुनिया जानती है, उसने कौन सा प्रेस क्लब छोड़ा, हैदराबाद के अंदर सालों धरना दिया, उसके अभी तक भी कराची गया, लाहौर गया, किसी प्रेस क्लब को नहीं छोड़ा, धरने पर बैठा रहा, और सालों, मतलब ये भी नहीं कि महीना, और वो शायद मेरे ख्याल से एक अपने आप में रिकॉर्ड है।